Hi everybody, welcome to another podcast on audit. Today we are going to do audit of insurance company. जैसे मैं आपको आज तक बताती आई हूँ, इंश्योरेंस गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक वेदर द इंश्योरेंस कंपनी आर रेगुलेटेड इन द राइट फैशन और नॉट. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. ओके, अब जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनती है. ओके, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. या तो वो लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकती है, जनरल इंश्योरेंस का काम कर सकती है, तीन एक्चुअली री इंश्योरेंस कंपनी का काम कर सकती है. मैंने आपको बताया था कि एफडीआई लिमिट जो है वो 74% चली गई है, अब इंक्रीज हो चुकी है. सो इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, प्लीज अपना चार्ट खोल लीजिए. These insurance companies are companies basically who are registered under Section 3 of Insurance Act 1938 also. And Section 12 of Insurance Act 1938 says that annual audit is mandatory to the insurance companies. उसके अलावा Companies Act खुद भी बोलता है Section 139 के अंदर every company requires to get audited as per Companies Act. So what is the objective of audit? The objective of audit is to express an opinion on the financial statements. Another one is to ensure the legal compliance. Legal compliance with what? First is Companies Act, second is Insurance Act 1938, third is IRDA guidelines, then आपका IRDA एक्ट है 1999 का. इन सब से हम लोग लीगल कंप्लायंस चेक करवाते हैं. देन व्हाट आर द स्टेप्स इन केस ऑफ ऑडिट? फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द organization itself, gaining a detailed understanding of the regulatory requirement of the organization, of the articles of association of the organization, etc. Then second step is to prepare an audit plan and program considering depending upon the quality of the ICS of the organization as well as the reporting requirements of the ICS. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. देन उसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ आईसीएस कैसे करते हैं हम लोग. इन इवैल्यूएशन ऑफ आईसीएस मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखवाया था. फर्स्ट वी चेक whether there are procedures for investigation of risk assumed. In case of insurance company, we are assuming somebody's risk. So whether there are procedures in place in order to check what kind of risk is involved. Second is we need to check whether underwriting guidelines have been framed and they have been communicated within the organization or not. Third is we need to check the premium, whether the premium calculation, premium की booking कैसे हो रही है, premium का appropriation कैसे हो रहा है, ये सब बातें. Then we need to check for claims, we need to check what are the procedures in place to assess or to process or to pay such claims. Then in case of insurance agents, we need to check what are the rules and regulations related to agency contracts. How is the premium paid to such agents? मैंने आपको बताया था premium के basis पे दिए जाते हैं. And the last one, in case of reinsurers, we need to check what are the procedures of selecting such reinsurers and whether we are notifying the losses incurred to the reinsurers. Are we receiving the payment from the reinsurance organizations or not? ये हो गया आपका evaluation of internal control system. Then we go on and we check the evaluation of the test of details of the organization, or as we call it, substantive examination of the organization. In case of substantive examination of an insurance company, हम लोग सबसे पहले one of the most important thing is verification of the premium. Premium is the amount that the insurance company receives in order to assume the risk from somebody else. So this is one of the major streams of the income of the insurance company. So that is why this is a material item for the purposes of audit. And this premium is collected when the policy is issued to the customers. Okay. And what is premium? As I already told you, it is a consideration for bearing the risk by the insurance company. So in this, first we need to verify that the organization has there is a section 64 VB of Insurance Act 1938 which says that no risk shall be assumed by the insurer without the receipt of the premium. So the auditor needs to verify that the company has only assumed the risk related to some customer only when they have received the premium. उससे पहले नहीं. Second, जब हमने premium receive कर लिया है तो क्या उसको हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया है, एंड नो विड्रॉल हैज बीन डन फ्रॉम दैट सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर मीटिंग द जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. देन दिस कलेक्टेड प्रीमियम should either be transferred to the registered office or to the head office. Also, the auditor needs to check that internal control systems and compliances which are laid down for the collection and recording of premium. Cover notes जो हैं वो सीरियली नंबर्ड है कि नहीं है. मैंने आपको बताया था कवर नोट्स जो होते हैं वो टेम्पररी नोट्स होते हैं. प्रीमियम रजिस्टर को क्रोनोलॉजिकली मेंटेन किया है या नहीं किया है. देन उसके अलावा अप्रोप्रिएट चार्ज ऑफ प्रीमियम हैज बीन मेड
as per the risk assumed by the company. Then what are the premium revenue recognition criteria? How is it considered? Recognition of premium revenue considering the division among periods, risk for unexpired risk. तो मैंने आपको बताया था, this point is very important. I'm so sorry, मैंने इसको पहले गलत तरीके से बोला. We need to check whether the premium related revenue has been recognized by dividing it into two criteria. पीरियड के हिसाब से और एक रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनता है. मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि पूरा का पूरा रिस्क जो है वो फर्स्ट ईयर में अज्यूम नहीं हो जाता है. हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कभी 3 साल 4 साल लंबी चलती है. सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क. वी नीड टू चेक हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड, वेदर इट हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट. फिर प्रीमियम के केस में वी नीड टू चेक, को इंश्योरेंस के केस में वी नीड टू चेक वेदर प्रॉपर बुकिंग ऑफ प्रीमियम हैज बीन डन और नॉट. Then also we check whether installments falling due or on or before the balance sheet date has also been accounted as insurance premium income or not. So ये सब चीजें हम चेक करते हैं in case of verification of premium. The second important area is verification of claim. So what is the claim? It is the expense, major expense of the organization. So auditor needs to understand, first he should obtain information regarding what are the different kinds of business रन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो किस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है. देन ही ऑल्सो नीड्स टू सी दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर बीइंग चेक्ड बिफोर गिविंग एनी क्लेम ऑफ हायर वैल्यू टू द कस्टमर. देन द क्लेम्स जो हम क्लेम्स की बात कर रहे हैं, द क्लेम्स अंडर पॉलिसीज शेल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ claims paid for the losses incurred and also those estimated or anticipated claims which are pending settlement under the policies. तो claims दो तरह के claims से बने होते हैं. एक हमारे claims for the losses incurred, second हमारे estimated और anticipated claims also. अब claims आपके किस किस वजह से होते हैं? डायरेक्ट बिजनेस की वजह से हो सकते हैं, इनवर्ड री इंश्योरेंस की वजह से हो सकता है, को इंश्योरेंस की वजह से हो सकता है. सो वी नीड टू चेक इन केस ऑफ को इंश्योरेंस वेदर सच क्लेम or the loss incurred due to such claim has been shared with the co-insurers or not. Also, the auditor needs to verify the claim account as well as settlement cost. Settlement cost क्या होती है? Settlement cost में आपका आता है legal expenses, repair charges, fire fighting expenses, survey fees, actuarial charges, etc. क्लेम्स के में इसमें ऑडिटर को और क्या क्या चेक, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऑडिटर सबसे पहले चेक करे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं बिफोर सेइंग ओके टू अ क्लेम. ठीक है. सेकंड, उसको चेक करना चाहिए सर्वेयर रिपोर्ट थी कि नहीं थी, लीगल रिकॉर्ड्स थे, सैल्वेज रियलाइजेशन की सारी रिकॉर्डिंग है कि नहीं है. देन पेमेंट जो है सिर्फ उन्हीं क्लेम्स के लिए किया गया है जिनके लिए हम लीगली लायबल हैं. दैट इज फॉर ओनली claims have been paid for only those policies for which the premium was received by the company already. Then कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई पेमेंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड कर दी है. इन केस ऑफ को इंश्योरेंस हमने सिर्फ अपने ही शेयर ऑफ क्लेम के लिए अपनी बुक में लॉस को रिकॉर्ड किया है. देन कोई अनसेटल्ड क्लेम है तो उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है कि नहीं है. क्लेम जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है कि नहीं किया है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन. अब जो हमारे कमीशन एजेंट होते हैं जो हमारी पॉलिसीज को सेल करते हैं, दे ऑल्सो गेट सम रेम्यूनरेशन. तो उनके केस में हम लोगों को चेक करना होता है. एज एन ऑडिटर यू हैव टू चेक कि जो डिस्पर्समेंट एंट्रीज हैं with reference to disbursement vouchers with the copies of commission bills as well as commission statements. इसको ऐसे समझिए आप कि जो कमीशन एजेंट्स हैं उनको सबसे पहले परसेंटेज बेसिस पे पैसे मिलते हैं. तो वो परसेंटेज बेसिस पे जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड और नॉट. सबसे पहले तो ये चेक करना होता है. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हम चेक करते हैं. देन हम चेक करते हैं व्हाट द अमाउंट ऑफ कमीशन दैट हैज बीन गिवन, उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज ऑफ द एजेंट्स को चेक करते हैं. हम लोग उन पॉलिसीज के ऊपर जो बाद में किसी वजह से विड्रॉ हो गई हैं उसके ऊपर हम लोगों ने कमीशन वापस से मांगा है कि नहीं मांगा है फ्रॉम द कमीशन एजेंट, ये चेक किया जाता है. आपकी अपनी बुक में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये, वेरीफाई दैट नो क्रेडिट ऑफ कमीशन इज गिवन टू द एजेंट फॉर बिजनेसेस डायरेक्टली प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ. दैट मीन्स अगर कंपनी ने खुद से पॉलिसी सेल करी है तो उस पे कमीशन एजेंट्स को कहीं कमीशन तो नहीं चला गया है. सो दिस इज योर वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन. देन वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके नॉर्मल मैनर में चलते हैं. हाउएवर ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि एक्सपेंसेस विच आर इन एक्सेस ऑफ इधर 5 लाख से ज्यादा हैं या 1% ऑफ नेट प्रीमियम है, विच एवर इज हायर, उनको हम लोगों को अलग से दिखाना होता है एक्सपेंसेस को. देन एक्सपेंसेस जो इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको भी हमें सेपरेटली दिखाना पड़ता है, जैसे बैंक चार्जेस हो गए.
इसके अलावा अब हम चेक करते हैं ऑडिट ऑफ असेट्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट 1938 का हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं दैट एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सबसे पहले तो आउटसाइड इंडिया जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकती है अपने पैसों को, मतलब पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम को। एक इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अंदर भी, लेकिन किसके अंदर कर सकती है? इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर। अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर तो 100% कर सकती है, और अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अलावा किसी और चीज में इन्वेस्ट कर रही है तो वो मैक्सिमम हो सकता है आउट ऑफ 2, या एक तो वो जो हम इन्वेस्टमेंट, जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इट शुड नॉट एक्सीड द 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो सच इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी मेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट होना चाहिए। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अलावा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए, सेकेंड टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। देन एक इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो invest in the shares and debentures of another insurance company or investment company, but the lower of either 10% of the total assets or 2% of the investee's subscribed capital or debenture, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लोअर ऑफ बोथ से ज्यादा नहीं कर सकती है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी के अलावा कहीं और कर रही है तो 10% ऑफ द टोटल एसेट्स और 2% की जगह अब हो जाता है 10% ऑफ द इन्वेस्टीज शेयर कैपिटल और डिबेंचर विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। देन कैश एंड बैंक बैलेंसेस की हम जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही हम करते हैं। देन आपकी रिपोर्टिंग आ जाती है। रिपोर्टिंग इज ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्चुअरियल वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज फॉर क्लेम्स भी देखते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें हम देखते हैं। सो दिस वाज योर इंश्योरेंस ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्लेम, प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ऑफ असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।